Gayatri madam, check your mic.
Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, yes. Hello. Okay. Okay. Now it's audible. You start your lecture now. Okay, ma'am. Okay, students. So lecture is going to start in a few seconds. Hello. Yes, ma'am. Is my screen is visible there, ma'am? Yes, yes, yes. Okay. Let's Thanks, start. ma'am. Okay. So welcome back to our PMC's online online lectures, and myself Gayatri Dilip Kumar Wagh from Goregaon MPS Secondary School. And today's our topic is the United Nations of Political Science. So student, yesterday we had completed with this half of part of this lesson with the background of United Nations. After that, how the United Nations are formed. After that, chronological establishment of this United Nations. After that, we had completed and discussed about the objective of the United Nations. After that, we had completed the principle and structure of United Nations. Along with, we have studied about the affiliated organizations of United Nations, such as International Level Organization, Food and Agriculture Organization, World Health Organization, World Bank Organization. After that, International Monetary Fund. After that, United Nations in Children Fund, and United Nations Educational and Scientific and Cultural Organization. After that, we had discussed about General Assembly of United Nations, and we had shared this screen with the our India's representative in India, this General Assembly of United Nations. After that, we had discussed with the functions of General Assembly. Now today we will start with the Security Council of United Nations. So students, there are 15 members in the Security Council. Five of them are the permanent members, while 10 are from non-permanent members. The non-permanent members are chosen every 2 years by the General Assembly. Okay. It means what? General Assembly elects or choose the rest 10 members of this council, and five are the permanent members. These five members are America, Russia, England, France, and China are the permanent members of the Security Council. See, these five members are permanent member of this Security Council. That is America, Russia, England, France, and China. So from this graph, you can see there are five permanent members and 10 non-permanent members. Now these permanent members have veto power. What do you mean by veto power? That any authentic prohibition, मतलब अधिकार युक्त निषेध. इसका मतलब है कि अगर उनको कोई प्रपोजल पसंद नहीं है, तो वो ये जो फाइव परमानेंट पावर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये उनका निषेध कर सकते हैं, मतलब उसको नकार दे सकते हैं. इफ दे this veto, they use their veto power, it gives a negative vote in that council and the decision cannot be taken. किसी भी प्रपोजल के इन पांचों में से, ये फाइव परमानेंट मेंबर्स में से अगर कोई भी एक इसके खिलाफ में होता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता. ओके. सो द for the allotment of any this one, it is important to uh, uh, approve from these five permanent members. Now the function of the Security Council. The main responsibility of the Security Council is to maintain international peace and security. The Security Council may suggest one among the following alternatives in situations of international conflicts, disarmament,
and resolve conflicts and make efforts to establish peace, impose economic sanction or take a decision of military action against the aggressive nation. इसका मतलब है कि नाम ही है सिक्योरिटी काउंसिल, इसका मतलब है कि उसका फर्स्ट वर्क है टू गिव सिक्योरिटी टू द वर्ल्ड, टू द वर्ल्ड। जितने भी इंटरनेशनल लोग हैं, जितने भी देश हैं इस वर्ल्ड में, सबको सिक्योरिटी देने का काम, सब विश्व में शांति रखने का काम सबसे पहला इनका होता है। तो इसके लिए वो बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई मतभेद होते हैं, उनको खत्म कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो भी पेनल्टीज होती हैं देशों के ऊपर, उनको कंप्लीट करने को, उनको वापस लेने का काम वो कर सकते हैं। और दे हैव दिस work or power to take decision of to military action against the aggressive नेशन। अगर कोई किस देश, कोई स्ट्रांग देश किसी के ऊपर अगर अटैक करना चाहता है या फिर उसके ऊपर से फाइट करना चाहता है, तो ये अपना मिलिट्री पावर यूज करके उनका ये जो है इरादा वो खत्म कर सकते हैं। ओके, सेकंड वन, टू प्रिपेयर पॉलिसीज फॉर आर्म कंट्रोल। तो आर्म कंट्रोल का, आर्म्स जो भी है हर एक देश के पास में जितने भी आर्म्स है उसके ऊपर कंट्रोल रहे, ये काम भी वो करते हैं। After that, they play a joint role among with the General Assembly into the appointments of the judges and international court. International court जो है उसके अंदर जजेस की नियुक्ति करने का काम यही करते हैं। So India is making efforts to get the permanent membership of the Security Council. इस Security Council में इंडिया कोशिश कर रही है कि उसको एक परमानेंट सीट मिल जाए। इट मीन्स ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उसमें से 6th जो है वो इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। The main objective of this organization is to coordinate the economic and social policies of the United Nations. Okay, with the name of this Economic and Social Council, economic मतलब जो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, सोशल मतलब जो सामाजिक काउंसिल से जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए अलग अलग पॉलिसीज थ्रो करना ये इस डिपार्टमेंट का काम है। द काउंसिल हैज 54 मेंबर्स, दे आर सिलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। सो अगेन द वर्क ऑफ जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का काम ही होता है कि इसमें से 54 मेंबर्स जो है वो चूज करें। Okay, each member has a tenure of 3 years, and each year 1/3 of the members are newly chosen. Okay, so in this assembly only each member has to work for 3 years. इसका हर एक member जो है वो केवल 3 साल के लिए काम करता है। और उसमें से हर एक मेंबर जो है, इसमें से जितने भी मेंबर्स है मतलब 54 ये जो मेंबर्स है उसमें से 1/3 मेंबर जो है वो हर साल जो है वो चेंज होते ही रहते हैं। सो decisions are be taken by majority of vote. If any proposal is there, so majority of people, जितने ज्यादा लोग हैं, जितने उनके जितने लोग हैं, जितने ज्यादा लोग जिस बात के लिए तैयार होंगे, प्रपोजल की तैयार होंगे, वही प्रपोजल आगे पारित किया जाता है। उसी के वोट पे वोट किया जाता है, उसी के बेस पे डिसीजन लिया जाता है। ओके, आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ द economic and social council. So the first function is initiate decision as at the global level on issues like poverty, unemployment, economic and social inequality, and suggest policies to tackle these problems. Now the first is to discuss on issues like poverty, unemployment, inequality and suggest policies. तो सबसे पहला, because economic and social council है, मतलब ये इकोनॉमी से और समाज से जुड़ा हुआ है, तो इसका सबसे पहला काम होता है कि जो पॉवर्टी है, गरीबी है, सारे देशों में से निकलती जाए। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी खत्म हो जाए, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी हो, पूरे सारे के सारे देश जो है उसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी हो उसके। और इन सब चीजों के लिए जो भी अलग अलग टाइप की पॉलिसीज जो है वो ये सजेस्ट करते हैं। आफ्टर टू discuss issues like women question, empowerment of women, human rights, fundamental freedom, global trade, health related issues, etc. are made decision. The second function of this department is to look after the women's question. जो लेडीज के लिए जो क्वेश्चन है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कुछ है, वो उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं कि किस तरह से जो लेडीज है उन्होंने आगे बढ़ना चाहिए। आफ्टर दैट
ह्यूमन राइट्स जो है, मानवता के जो हक है वो सबको मिले हैं और वो कंप्लीट होने चाहिए। फंडामेंटल फ्रीडम है, या फिर ग्लोबल ट्रेड है, मतलब जो बिजनेसेस चलते हैं, इंटरनेशनल जो बिजनेस चलते हैं उसके ऊपर भी इनका ध्यान रहता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एक्सेट्रा आर द एंड मेक डिसीजन, इन सब बातों पे वो लोग डिसीजन जो है वो लेते हैं। थर्ड वन इज मेक एफर्ट टू एस्टेब्लिश कल्चर एंड एजुकेशनल cooperation at the international level. Okay, they are trying to establish culture and educational cooperation at the international level. It means cultural जो उनकी संस्कृति है, हर एक देश की अपना एक कल्चर होता है, तो वो उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ना है, एक एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करना है। उसके बाद में एजुकेशन को लेके भी, जो एजुकेशन जो है, जो एक दूसरे से दूसरे देश में जो जा सकता है या फिर पढ़ाई कर सकते हैं, तो इन सब वो सब चीजें बहुत इजी हो जाए, तो ये सब करने का काम जो है ये करता है, बिकॉज इट कम इनटू सोशल काउंसिल, ये जो समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए कल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो संभालता है। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन एसोसिएशन विद यूनाइटेड नेशन। सो कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन? विद द एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, they have to work with these organization because economic is there, क्योंकि ये जो affiliated organizations है, to run these affiliated organization, finance is very important, and this department provide finance to that all organizations. So the work of this department is to coordinate with the different organizations. Okay, the next one is Secretariat of United Nations. So at Secretariat, this is so there is no special department there. There is a special department and a huge building you can see on the screen, that is the Secretariat of United Nations. So this secretariat carries out the substantive and administrative work in the of the United Nations as directed by the General Assembly. So General Assembly में जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, उससे रिलेटेड वो सारा का सारा जो है वो इस सेक्रेटरीट बिल्डिंग में किया जाता है। द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द अदर ऑर्गन्स at its head of the Secretary General who provides overall administrative guidelines. मतलब जो भी अब एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जितना भी लिखा पढ़ी का काम होता है, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी पेपर वर्क होता है वो सारा का सारा संभालने का काम ये वाला डिपार्टमेंट करता है। सो द सेक्रेटरीट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क of the United Nations. Whatever the task is related to the administrative department is handled by this secretariat. The chief of secretariat is the secretary general. So the chief of this secretariat is secretary general. He is selected by the general assembly and the security council. His tenure is of 5 years. So this secretary general is selected by General Assembly and Security Council, and his tenure is only for 5 years. Now, another the function of this today's Secretary General of United Nations is Antonio Guterres. So he is the ninth Secretary General of United Nations, and he took his office on 1st January 2017. Now, the different functions of Secretariat. What are the different functions of this Secretariat? To call international conference of global problems like climate change, human rights, and disarmament. So the first work of this secretariat to call international conference, because he is doing administrative work. So he is calling international whatever problems are there. ओके जो भी चैलेंजेस होते हैं पूरे विश्व के सामने, उसके लिए जो भी कॉन्फ्रेंस है, जो भी डिस्कशंस करने हैं, वो सारा काम करने का काम ये सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट करता है। तो प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन राइट्स और डिसआर्मामेंट, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारे इनके ऊपर डिस्कशन करने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस बुलाने के लिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाने का काम जो है ये सेक्रेटरीट करता है। टू ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ द जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल, वॉट एवर meetings are there. So this of a General Assembly and Security Council, this department, Secretariat department organize that meetings. Okay.
to compile the information. What are the information are there? They are provided to the media and they store their information to supply information to the media. What are the different decisions are taken in the assembly or in the security council that are informed to the media through this secretariat. Okay. The next one is International Court of Justice. All these are the departments of United Nations. Okay. Now you can see on the screen, you can see the International Court of Justice, that is ICJ, is the principal judicial organ of United Nations. The court has two functions: to settle and in accordance with international law, legal disputes submitted by states, and to give advisory opinion to legal questions referred to it by authorized UN organs and specialized agency on December 19, 2020. इसका मतलब है कि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इस कोर्ट में लाए जाते हैं। तो उनका काम क्या होता है, इस कोर्ट का काम क्या होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको सेटल किया जाए और जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, जो भी है वो लीगली जो डिस्प्यूट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो सेटल किए जाए और सेटल करने के बाद उनको एडवाइस किया जाए कि आप इस डिस्प्यूट्स को कैसे खत्म कर सकते हो। जो भी डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, उनको कैसे खत्म कर सकते हो, इसको एडवाइस करना दोनों कंट्रीज को, जो भी कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दोनों को वो एडवाइस करते हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ एक्शन ऑन दैट। वो किसी भी टाइप का एक्शन नहीं लेंगे, वो सिर्फ सेटल करते हैं और कुछ एडवाइस करते हैं, बट दे कांट टेक एनी एक्शन ऑन इट। सो this international court of justice International Court of Justice means the judicial branch of United Nations. देखिए, see, every department is doing their separate work. ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट, आप अभी हम जैसे पढ़ते जा रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करता है। जैसे जनरल असेंबली है, जनरल के नाम में ही है कि सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव वहां पे आते हैं और अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं या फिर अपने जो कुछ व्यूज होते हैं वो वहां प्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब पूरे विश्व को सिक्योरिटी देने का काम जो है वो ये डिपार्टमेंट संभालता है। थर्ड वन इज सेक्रेटेरिएट। देखिए, जो कुछ लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, दैट इज हैंडल्ड बाय दिस सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट। अगेन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, व्हाट एवर द financial support is there, that is given by this economic and social council. And next one is whatever happening in the world, and for it a court is very important. अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर अगर हमको रिजल्ट निकालना, उसका कोई हमें निकस निकालना है, कोई उसको क्योर करना है, तो उसके लिए हमें कोर्ट की जरूरत है। तो सी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज देयर, दैट इज द one main pillar of this organization. So the International Court of Justice is located at the in the नीदरलैंड में उसका ये मेन ऑफिस है। देयर आर 15 जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो इन दिस कोर्ट देयर आर 15 जजेस। यू कैन सी on the screen that there are 15 judges sitting in this international court. They are chosen by General Assembly and Security Council. Every judge has the tenure of 9 years. Each and every judge from this court has the tenure of 9 years. Now, what are the function of this international court? The first function to settle the disputes between two or more members nation of the United Nation. तो United Nation के अंडर में जितने भी members हैं, उनके अगर बीच में कोई disputes होते हैं, तो उसको settle down करने के लिए ये काम जो है वो करते हैं. After that, to interpret international law authority. To interpret international law, जो international law जो है वो हर जगह तक पहुंचने चाहिए, मतलब उसका यूज करके वो सारे डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो कुछ है वो खत्म करने का कोशिश ये करते हैं. एंड थर्ड वन, टू एडवाइज द वेरियस ऑर्गन्स और subsidiary bodies to United Nations about legal issues. So they are giving advice
अबाउट द लीगल इश्यूज, जो कुछ इश्यूज है उसको क्या लॉस को लेके, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हैं उसको लेके वो क्या एडवाइस करते हैं, ये देने का काम वो कर सकते हैं. ओके, ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. The International Criminal Court is an intergovernmental organization and an international tribunal. Its headquarters are at Hague in the Netherlands. The International Criminal Court has to uh, jurisdiction of prosecute individuals of international crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes that are concerned to the international community. So what? Uh, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट है, इनका काम क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से आते हैं तो उसके ऊपर वो एक्शन लेते हैं. सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ओनली कैन सेटल द इश्यूज. Okay, and they can resolve that problems by the advices. वो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं या उसको सेटल डाउन कर सकते हैं, बट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पनिशेस देम. जो भी कंट्री, जो भी पीपल, जो भी कंट्री ने गलत काम किया है, क्राइम किया है, या फिर जो पर्सन है जिसने क्राइम किया है, तो वो उसको पनिश करने का काम जो है ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो करती है. सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पनिशेस द पीपल. वो आदमी, जो पर्सन है उसको वो पनिश करने का काम करती है, वेयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सारे इश्यूज जो है वो केवल सेटल डाउन किए जाते हैं, वो सिर्फ एडवाइस करते हैं, वो किसी भी टाइप का पनिशमेंट वहां पे उनको नहीं देते. ओके, द नेक्स्ट वन इज ट्रस्टीशिप काउंसिल. नाउ आफ्टर the Second World War, the trustee territories had were undeveloped, were placed under the responsibility of the developed nation. The latter was supposed to help bring about the development of the trust territories, and the ones they attained independence from their colonies, help establish democracy. The work of the trusteeship council is over as there are no trust territories left. See, the Trusteeship Council of United Nations. What is their work? The trusteeship, one of the main organ of United Nations, was established to supervise the administration of the trust territories as they transcend from colonies to sovereign nations. The council suspended its activities in 1994 when Palau, the last of the original 11 trust territories, gained this independence. So, what is the work of this trusteeship council? To give the independence to any countries. ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, जैसे इंडिया जो थी वो पहले ब्रिटिश के अंडर थी, मीन्स ये कॉलोनीज थे, ये सोवेरियन नेशन नहीं था. वैसे ही कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो सोवेरियन नहीं है, वो कॉलोनीज ही है, मतलब वो किसी के अंडर में ही काम कर रहे हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट बनाने का काम जो है वो ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो करती थी. लेकिन 1994 से ही ये एक जो डिपार्टमेंट है ये खत्म बंद हो चुका है, क्योंकि पालाव जो था वो सबसे लास्ट ऐसी कॉलोनी थी जो अभी नेशन बन चुका है, जो अभी इंडिपेंडेंट हो चुका है. सो दिस डिपार्टमेंट इज नॉट मोर वर्किंग देयर. ओके, आफ्टर देन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. नाउ Millennium Development Goals, the United Nations member nations come together in 2000 and decided upon the development goals for the new millennium. So, when these United Nations members come together, ये सब एक साथ आए 2000 में, and they decided to डेवलप देयर गोल्स. अब उनको अपने जो गोल्स थे जितने भी, उनको जब हमको आगे लेके जाना है तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज फॉलो की, उन्होंने वो गोल्स बनाए कि हाउ वी गेट दिस गोल्स. नाउ इन दैट द फर्स्ट गोल इज टू एलिमिनेट पॉवर्टी. The first goal of this Millennium Goal development is
टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर, पूरे विश्व में से भूखमरी और गरीबी ये हटा देनी है, ये उसका सबसे पहला गोल है। सेकेंड वन, टू मेक द फैसिलिटीज ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल। एज यू सी इन अवर गवर्नमेंट आल्सो, अवर इंडिया आल्सो, RTE का जो रूल है, रूल और एजुकेशन जो है, कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो यही यहाँ पे भी है कि हर एक प्राइमरी जो एजुकेशन है, हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। द थर्ड वन इज women empowerment. So each and every country has to raise with the women empowerment. सबके सारे के सारे देशों में जो महिलाएं हैं उसको सुरक्षा मिले, उनको काम मिले, उनको शिक्षा का अधिकार मिले, ये सारा काम करने, ये सब देखने का काम जो है, ये इनका एक गोल है जो इसको फुलफिल करना चाहते हैं। एंड टू रिड्यूस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, जो भी नवजात शिशु जो है, इन्फेंट मतलब होता है जो 1 साल के अंदर के जो शिशु रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, बेबीज रहते हैं वो। तो पहले क्योंकि तब प्रेग्नेंट वुमेन या फिर जो छोटे बच्चे थे उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको मेडिसिन नहीं दी जाती थी, इसलिए उनकी जो मौतें हैं वो बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन नाउ बिकॉज ऑफ प्रिकॉशंस, अभी बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के भी और इन्फेंट के भी, तो अभी जो मॉर्टेलिटी रेट है, उनके मृत्यु दर जो है वो अभी कम हो चुका है, मतलब खत्म ही हो चुका है, ऐसे हम मान सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पेशल केयर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन को स्पेशल केयर किया जा सकता है। अभी आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए स्पेशल स्कीम्स चलती हैं, स्पेशल डिपार्टमेंट चलता है जो इस टाइप के लेडीज जो है प्रेग्नेंट है उनका केयर करते हैं। आफ्टर फाइट अगेंस्ट डिसीजेस, so diseases like AIDS, malaria, and now corona, all these are the diseases, and their goal is to fight against these diseases. Next one is to protect the environment and increase the cooperation between developed and developing countries. Now to protect the environment, environment को protect रखना है, मतलब pollution कम होना चाहिए, किस तरह से हमें संवर्धन करना है, हमें environment को अच्छा रखना है, पेड़ लगाने हैं, ये सब है, pollution से बचाना है, ये सब देखने का काम, ये सब उनके सामने एक गोल है। And last one is increase cooperation with the developed and developing countries. जो developed है, already developed है, और developing country like America and India. We are not developed country, we are developing country. हम लोग डेवलपिंग कर रहे हैं, बट अमेरिका इज अ डेवलप कंट्री, वो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसको और डेवलप होने की जरूरत नहीं है, बट वी आर इन डेवलपिंग कंट्री। तो इनके बीच में कॉपरेशन होना चाहिए कि किस तरह से जो डेवलपिंग कंट्री है उसे ये डेवलप कंट्री जो है वो हेल्प करेगी, जिससे कि वो भी अच्छी तरह डेवलप हो सके। तो ऑल दीज आर द गोल्स बिफोर these Millennium Development Goals. Now, India has made considerable progress in the direction of achieving the Millennium Development Goals with the help of UNICEF and UNESCO. So, जो इंडिया है, इंडिया ने भी बहुत प्रोग्रेस की है इस का हेल्प लेके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की तरफ से, क्योंकि यूनिसेफ और यूनेस्को है, ये दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं के जो पार्ट्स है, ये हमारे देश में भी काम कर रहे हैं, और इनके काम से हमारा देश भी अभी आगे जो है वो बढ़ता चले जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस and preservation of peace. Now, the objective of United Nations is to settle international conflict peacefully. The United Nations Charter lays down the ways and means to be employed to achieve these goals. It includes appointing an intermediary acceptable and to the nations involved in the conflict. Use the legal procedure. Appoint an arbitrator to solve the dispute, and if needed to take recourse of military means, and assure that conflict will not occur again. See what happened. The first objective of United Nations is to settle peace इन द वर्ल्ड। ओके, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए, लोगों ने एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस
इसलिए वो अलग अलग रूल्स जो बना रहे हैं कि किस तरह से शांति, अगर दो देशों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है तो कोई एक बीच में, जिसको हम बोलते हैं कि एक मध्यंतरी होता है, जो दोनों की साइड की बातें सुन लेता है और फिर उसके बारे में वो दोनों को शांत करता है कि ठीक है तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तो मामला जो है वो खत्म हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएटर। तो इस तरह से अगर किसी किसी दो देशों में प्रॉब्लम्स है तो कोई तो इंटरमीडिएटरी को लगा के वो सारे प्रॉब्लम जो है वो सेटल डाउन कर दिए जाए। कुछ लीगल प्रोसीजर्स की अगर जरूरत पड़ती है तो वो किया जाए। मतलब किसी भी तरह से करके हमें हमारी दुनिया में शांति रखनी है, वॉर नहीं करना है, जिससे कि बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह के अलग अलग वेज जो है, दे आर यूजिंग दीज वेज टू सेटल डाउन एंड टू मेक पीसफुल वर्ल्ड। Okay, in modern times, human security has been threatened by terrorism, racist, and religious conflict. तो अभी जो मॉडर्न टाइम अभी हमारा चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मनुष्य को किससे डर है, ह्यूमन सिक्योरिटी किससे डरी हुई है, वो है टेररिज्म से। क्योंकि विश्व भर में, पूरे दुनिया में टेररिज्म हर एक जगह पे है, तो इससे लोगों को नुकसान है। उसके बाद में जातिवादता है, और धर्म को लेके, जो रिलीजन को लेके, धर्म को लेके, जात के लेके, ये जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ये हम अब आज के टाइम में भी दुनिया के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। As a result, the function of securing peace of United Nations has acquired a lot of importance. तो इन सब बातों को दूर करने के लिए जो यूनाइटेड नेशन है, ये बहुत बड़ा काम जो है वो कर रहा है। So the United Nation makes efforts to ensure that violence does not erupt in stripped-down areas and normalcy is restored as soon as possible by, for example, starting schools, creating awareness among the people about human rights, make social, economic, political facilities available, conduct election, etc. So, यूनाइटेड नेशन का ये एफर्ट रहता है कि जहाँ पे वायलेंस कहीं पे ना हो, या फिर जो ऐसे भाग है जहाँ पे बहुत तनाव रहता है, हमेशा झगड़े रहते हैं, देशों के बीच में, बॉर्डर्स में झगड़े रहते हैं, या फिर ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये सेटल डाउन हो जाने चाहिए। तो चाहे तो इसके लिए, और झगड़े कब होते हैं, प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होते हैं, जब वहाँ के लोग सीखे हुए नहीं होते, जब उनको ज्ञान नहीं होता है। तो इसके लिए वो स्कूल स्टार्ट किए जाए, लोगों को ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जाए, उसके बाद में वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी की जाए, उसके लिए पॉलिटिकल फैसिलिटीज दिए जाए। अब पॉलिटिकल फैसिलिटीज के लिए इलेक्शंस वगैरह है कि हमारे अगर देश में नेता अच्छे रहेंगे तो हमारा समाज जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हमारी सेवा अच्छी कर पाएंगे। तो ये सारी बातें जो है ये इस यूनाइटेड नेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो द यूनाइटेड नेशंस डज this by the working to prevent conflicts, helping parties in conflict make peace. No, so peacekeeping and creating the conditions to allow peace to hold the flourish. The UN Security Council has the primary responsibility for international peace and security. तो international peace and security का ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिक्योरिटी काउंसिल ही उठाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग। Now, the peacekeeping activity of United Nations involves creating appropriate circumstances favorable for bringing about permanent peace in stripped-down areas. The peacekeeping force help these areas to progress toward peace. In conflict-ridden areas, security is provided and at the same time help the extent of establishing peace. Now see, this force is there, that is peacekeeping force. ये peacekeeping force है जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से बनाई गई है। The work of this peacekeeping force is to help the areas to progress toward peace. जिस भी एरिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर झगड़े चल रहे हैं, तो वहां पे शांति बनाए रखने का काम, शांति लाने का काम जो है ये पीस कीपिंग फोर्स करती है। तो इनका सबसे बड़ा काम है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ये इनका काम है, और जहां हो सके वहां पे शांति बनाए रखने का काम इनका होता है। इस
पीस कीपिंग फोर्स का। द यूनाइटेड नेशन takes up peacekeeping as one of the tasks of safeguarding and fostering peace in the world. So this peacekeeping force और पीस कीपिंग जो है ये ऐसा टास्क है जो पूरे विश्व में शांति फैलाने का काम करता है, या शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जाए इन सब बातों का ध्यान ये रखता है। Following things are other actions of United Nations may take supplementary to peacekeeping activities. सो पीस कीपिंग एक्टिविटीज मतलब शांति बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से और ये काम किए जाते हैं, जिनमें है प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मेडिएशन। तो सबसे पहले उनका काम होता है कि प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े हो ही ना, ठीक है, हर एक बात को शांति से सुलह करके मान लिया जाए। तो प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मतलब बीच में पड़ के कोई झगड़े हो ही ना, ये इसका पीस कीपिंग का पहला काम रहता है। देन एक्चुअली एस्टैब्लिश पीस, हर जगह पे शांति ही बनाई रखनी है, इसकी कोशिश रखती है। इम्प्लीमेंट द मेजर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग पीस, जो भी हो सके, जितना उनसे हो सके कि अलग अलग सोर्सेस यूज करके, कुछ भी मेजर्स यूज करके हर जगह पे उनको शांति बनाए रखनी है। एंड पीस बिल्डिंग, हर जगह पे शांति बनाने के लिए जो भी रहता है, काम रहता है, वो उनको करने का काम जो है ये पीस कीपिंग जो है वो करते हैं। ओके, दीज आर द some activities of peacekeeping, that is prevention of conflict and mediation, then establish peace, implement of measures of peace, मतलब implement of measures of peace मतलब शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ये पीस कीपिंग एक्टिविटीज में करते हैं। एंड बिल्डिंग पीस, हर जगह पे शांति बनाए रखने के लिए। द लास्ट वन इज द यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया। Now, India had participated in the different conferences that were held before the establishment of United Nations. India has participated in bringing issues like decolonization, disarmament, racial segregation on the United Nations platform. तो इंडिया और यूनाइटेड नेशन का इस तरह से रिलेशन है that they are cooperating each other, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और यूनाइटेड इंडिया जो है वो पहले से ही पार्टिसिपेट कर रहा है यूनाइटेड नेशन में, और उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनके सामने रखी, जैसे डीकोलोनाइजेशन हो गया, डिसआर्मामेंट हो गया, रेशियल सेग्रीगेशन, मतलब जो पहले हम लोग डिपेंडेंट थे, जातिवाद, ये सब, ये सारी चीजें उन्होंने यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म तक लाई है। Now, in 1946, India was the first country to raise the question to racism in the United Nations. तो we get independence in 1947, उससे पहले ही 1946 में ही हमारी तरफ से जातिवाद को लेके ये जो प्रॉब्लम है ये हमने यूनाइटेड नेशन के सामने रखा है। India has always led the discussion about the problems of undeveloped and developing countries. तो इंडिया की तरफ से हमेशा जनरल असेंबली में ये जो प्रॉब्लम्स है अनडेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जो कुछ है वो उनके सामने रखा गया है। इंडिया हैज ऑलवेज सेंट हर ट्रूप्स, ट्रूप्स मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ओके, ट्रूप्स टू पार्टिसिपेट इन द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। मींस सी ऑन द स्क्रीन वी कैन सी टू वुमेन आर देयर, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि जो कुछ फोर्स है पीस कीपिंग की, उसके अंदर इंडिया के आपके ट्रूप भी जाते हैं वो सब काम करने के लिए। नॉट जस्ट दैट, इंडिया हैज सेंट एन ऑल वुमेन पीस कीपिंग फोर्स एज वेल। तो इंडिया की तरफ से एक वुमेन की, सिर्फ लेडीज की एक ऐसा ट्रूप गया है जो वहां पे पीस कीपिंग फोर्स में काम करता है। इट इज evident from the foregoing analysis that India makes serious efforts to solve international conflict by peaceful manners. तो ये सिद्ध कर चुका है इंडिया कि अगर उसको भी शांति चाहिए, वो भी विश्व में शांति चाहते हैं, तो इसके लिए जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो शांतिपूर्वक ढंग से वो खत्म कर देने चाहिए। तो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज आल्सो इन द फ्रंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म। ये भी जो हमारे बीच में टेररिज्म को लेके प्रॉब्लम्स है ये सब है, तो ये भी ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन का जो प्लेटफॉर्म है, जनरल असेंबली है, वहां तक ये प्रॉब्लम जो है ये पहुंच चुके हैं। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जाते हैं वो इंटरनेशनल पीस को लेके बहुत अच्छे वहां पे आइडियाज देते हैं।
So that's all in this lesson. Hope you understand it. Is any problem? Is any problem with this lesson?